Yes, hello students. Today we will do the next topic, that is National Securities Depository Limited. That is very important topic of the chapter depository. It is the largest depository in India which deals with all the transactions of sale and purchase and opening of demat account and rematerialization and dematerialization. So it is a big organization, big you can say entity in India which deal with the depository. So NSDL is a financial organization which was created to hold the securities such as bond, shares in the form of electronic form. ठीक है, these securities are held in depository. जैसे for example I have already told you, जैसे we maintain our bank account, same we maintain our demat account, and where we open our demat account, we open this demat account with the depository. And what that depository is? That depository is the NSDL, that is National Securities Depository Limited. This is the name of the company which maintains the demat account of all the investors. Okay, so this is it facilitate prompt. I already told you the benefits of the dematerialization. With the help of dematerialization we can transfer our securities from one person to another person in a very quick time. So this depository help us to transfer the shares from one person to another person. Okay, now I have already told you there are two type of central deposit in India. That first is NSDL and next is CDCL, Central Depository Service Limited. So we are talking about the NSDL here. NSDL is the first and largest depository which was established in November 1996 for the purpose of handling the securities held in dematerialized form. Dematerialized means in electronic form in Indian capital market. NSDL has a open मतलब डेली के डेली वो एवरेज कम से कम 3 से वो मतलब 3600 टू अराउंड वो डीमेट अकाउंट डेली उसके पास खुलते हैं, क्योंकि बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल ओवर इंडिया. NSDL इज़ प्रमोटेड बाय IDBI, UTI, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. इट मीन्स कि जो हमारा इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रमोटर है इस कंपनी का, NSDL का जो प्रमोटर्स है वो कौन है? IDBI मीन्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. दे मेंटेन दिस दे ओनर दिस NSDL. Okay, now another shareholder of NSDL are as follows: Axis Bank Limited, Citibank, DCB Bank, HSBC. मतलब these are the banks which have also a stake in the NSDL. Okay. Now next topic is safety measures taken by the NSDL. Safety measures taken by the NSDL, you can say that, or you can say that the services taken by the NSDL. So first is selection criteria decided by SEBI for the DP मतलब होता है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स. तो डिपोजिट पार्टिसिपेंट्स के लिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो कौन बनाता है? SEBI बनाता है. तो जो भी डिपोजिटरी अपने पार्टिसिपेंट्स बनाएगी तो उन पार्टिसिपेंट को जो वो रूल्स एंड रेगुलेशन SEBI ने उनके लिए बनाए हुए हैं उनको अपने दिमाग में रखते हुए, उनको कंसिडर करते हुए वो किसी को अपना क्या बना सकती हैं? पार्टिसिपेंट बना सकती है. नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एट सेंट्रल NSDL सर्वर. NSDL सर्वर मतलब सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स NSDL उसके अंदर होती हैं वो एक सर्वर होता है NSDL का, जिसके सर्वर के ऊपर वो सारी ट्रांजेक्शन्स उसकी क्या होती है? मेंटेन होती है या फिर रिकॉर्ड होती हैं, जिससे कि SEBI या कोई और स्टॉक एक्सचेंज उसको क्या कर सके? चेक कर सके. नेक्स्ट इज पीरियोडिक स्टेटमेंट. पीरियोडिक स्टेटमेंट मीन्स जो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको इन्वेस्टर्स को मतलब डिपोजिटरी अपने पार्टिसिपेंट को कहता है. डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट फर्दर उनके इन्वेस्टर्स को, मैंने आपको पहले ही बताया था कल भी कि एक प्रोडिक स्टेटमेंट मतलब हमारे पास हर महीने एक स्टेटमेंट आ जाती है जिसमें हमें ये मेंशन होता है कि हमारे पास कितने शेयर्स पड़े हैं, कितने इस साल मतलब महीने बिके, या इसने कितने हमने खरीदे, किस प्राइस पे हमने खरीदे, किस प्राइस पे हमने बेचे. वो पूरी स्टेटमेंट हमारे पास हर मंथ या हर वीकली जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम ले सकते हैं. और वो कौन भेजता है हमें? डिपॉजिटरी के पार्टिसिपेंट. लेकिन डिपॉजिटरी के पार्टिसिपेंट कौन बनाता है? डिपॉजिटरी खुद बनाती है, क्योंकि डिपॉजिटरी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है पूरे ऑल ओवर इंडिया, तो वो हर किसी से डील नहीं कर सकती, तो वो अपने ब्रांचेस खोल देती है हर सिटीज़ में. तो जिनको वो ब्रांचेस को हम लोग एक शॉर्ट इस फॉर्म इनको क्या कहते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. नेक्स्ट इज पीरियोडिक चेकिंग एंड इंस्पेक्शन. पीरियोडिक चेकिंग एंड इंस्पेक्शन मीन्स जितने भी कंपनी के डिपॉजिटरी के पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका प्रॉपर चेकिंग या इंस्पेक्शन होती है कि वो लोग कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन उनके लिए बनाए गए हैं उनको वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट इज रैंडम काउंटर चेक. रैंडम काउंटर चेक का मतलब क्या होता है कि जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उनको स्टेटमेंट भेजता है इन्वेस्टर्स को, उनको भी ये चेक किया जाता है, बार बार रैंडमली चेक कर लिया जाता है कि वो लोग ठीक भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑन अकाउंट एंट्रीज. अकाउंट एंट्रीज मतलब जितनी भी एंट्रीज होती हैं डेबिट, मतलब जिसके भी डीमेट अकाउंट में डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, उसका प्रॉपर कंट्रोलिंग किसके पास में होती है? NSDL के पास में होती है. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ डाटा. प्रोटेक्शन ऑफ डाटा मीन्स NSDL के पास जितना भी डाटा होता है शेयर होल्डर्स का कि इसके डीमेट अकाउंट में इतने शेयर्स पड़े हैं, इसके डीमेट अकाउंट में
इतने शेयर्स पड़े हैं, वो कभी भी किसी को लीक नहीं होते, उसका प्रॉपर प्रोटेक्टेड डेटा होता है हर शेयर होल्डर का। एनएसडीएल उसको पूरे प्रोटेक्टेड वे में क्या करती है, मेंटेन करती है। नेक्स्ट इज फ्रीज फैसिलिटी। फ्रीज फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, सपोज मुझे अपना अकाउंट बंद कराना है तो मैं अपना अकाउंट क्या करा सकती हूँ, बंद करा सकती हूँ। मुझे उसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी है, अभी कोई सेल परचेज नहीं करनी है, तो मेरा मन है कि मैं अपना अकाउंट कुछ दिन के लिए फ्रीज करा दूँ। फ्रीज मतलब कुछ दिन के लिए बंद करा दूँ, तो वो भी मेरा कौन करता है, एनएसडीएल करता है। अगर एनएसडीएल के पास ये पूरी पावर होती है कि वो उसको क्या कर सकता है, फ्रीज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज नाउ व्हाट आर द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द एनएसडीएल। सबसे पहले डीमेटलाइजेशन, मतलब मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको अपने फिजिकल शेयर्स क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराने हैं तो वो किसके साथ करा सकते हो आप, विद द हेल्प ऑफ एनएसडीएल। एनएसडीएल एक डिपॉजिटरी है जिसके पास एक एप्लीकेशन लिखोगे, अपने डॉक्यूमेंट्स दोगे तो वो आपका एक डीमेट अकाउंट ओपन कर देगा और आपके जो फिजिकल शेयर्स हैं उनको डीमेट अकाउंट में क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा और किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट इज रीमेटलाइजेशन। रीमेटलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपको अपने डीमेट अकाउंट के जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके शेयर्स पड़े हैं उनको अगर आपको फिजिकल शेयर्स में कन्वर्ट कराना है तो भी वो आपका कौन करता है, एनएसडीएल करता है। उसका भी सेम प्रोसीजर है, जैसे हमें अगर डीमेट में कन्वर्ट कराने का जो प्रोसीजर था ऐसे ही सेम प्रोसीजर हम लोग अप्लाई होता है फॉर द फिजिकल शेयर्स। नेक्स्ट इज मार्केट ट्रांसफर। मार्केट ट्रांसफर मतलब क्या होता है बेटा, कि अगर सपोज हमें अपने शेयर्स किसी को सेल करने हैं या परचेज करने हैं, हमारे अकाउंट से वो क्रेडिट होने हैं, डेबिट होने हैं, तो उसकी एक एप्लीकेशन हम डिपॉजिटरी को लिखते हैं, एक फॉर्म भरते हैं कि हम इतने नंबर ऑफ शेयर अपने क्या करने हैं, सेल करने हैं। वो हम लोग ब्रोकर के पास जाते हैं, ब्रोकर को दे देते हैं स्लिप, ब्रोकर हमारे वो स्लिप को डिपॉजिटरी के पास भेजता है। ब्रोकर कौन है यहाँ पर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ठीक है। वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इसको डिपॉजिटरी के पास भेजता है, तो इससे हमारे पास जो भी हम सेल और परचेज करना चाहते हैं वो भी कौन करता है, हमारी एनएसडीएल। नेक्स्ट इज ऑफ मार्केट ट्रांसफर। ऑफ मार्केट का मतलब क्या होता है, सपोज आप एक होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब जो हमारी मार्केट चल रही होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, वहाँ पर उसको कहते हैं ऑनलाइन। ऑफ होता है जहाँ पर हम किसी के फिजिकल शेयर आपस में खुद ही मतलब एक दूसरे के साथ खरीद रहे हैं, तो उनको भी हम ट्रांसफ़र किसके थ्रू कराते हैं, डिपॉजिटरी के थ्रू कराते हैं। नेक्स्ट इज इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफर। इंटर डिपॉजिटरी मतलब एक डिपॉजिटरी अगर दूसरी डिपॉजिटरी में ट्रांसफर कर रहे हैं, सपोज एनएसडीएल की कोई डिपॉजिटरी है, वहाँ मेरा डीमेट अकाउंट खुला हुआ है, लेकिन मैंने किसी दूसरी वाली डिपॉजिटरी के उसमें डीमेट अकाउंट खुलवाया है, तो वहाँ से भी वो डीमेट अकाउंट दूसरे डीमेट अकाउंट में मेरे शेयर्स क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मीन्स आपको अगर अपने जैसे शेयर सपोज अभी आपके यहाँ किसी की डेथ हो जाती है तो उसको अपने बेटे के नाम पर वो ट्रांसफ़र करने हैं, लेकिन बेटे का तो डीमेट अकाउंट दूसरा होगा, तो डिपॉजिटरी आपकी क्या करेगी, आपके शेयर्स आप एप्लीकेशन लिखोगे और आपके शेयर्स वो उस आपके नाम से अकाउंट से उस आपके बेटे के नाम पे क्या कर देगी, उनके अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफ़र कर देगी। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट एक्शन। कॉर्पोरेट एक्शन मीन्स कि जो भी क्या कहते हैं बेनिफिट्स उनको इन्वेस्टर देती है, जितने भी जैसे कंपनीज कोई शेयर इशू, बोनस इशू कर रही है, राइट इशू कर रही है, या कोई भी शेयर आपको दे रही है, तो वो भी ऑटोमेटिकली डिपॉजिटरी आपके अकाउंट में क्या कर देती है, क्योंकि कंपनी लिस्ट देती है डिपॉजिटरी को कि भाई ये मेरे शेयर होल्डर है और मैं इनको इतने इतने शेयर्स एज अ बोनस देना चाहती हूँ, तो डिपॉजिटरी आपके ऑटोमेटिकली उनके पास पूरी आपके अकाउंट की डिटेल्स है, आपके अकाउंट में उनको क्या कर देगी, ट्रांसफ़र कर देगी। नेक्स्ट इज़ वैल्यू एडिड सर्विसेज। कॉर्पोरेट में जैसे वैल्यू एडिड सर्विसेज मतलब जैसे कि आपको मतलब आपको अपने शेयर्स प्लेज करवाने हैं, आपको कोई घर लेना है और उसके बदले में आपको अपने शेयर्स प्लेज कराने हैं, तो वो भी कौन करता है, आपका प्लेज का सारे डॉक्यूमेंट्स कौन फुलफिल करता है, दैट इज़ योर एनएसडीएल। नेक्स्ट इज प्लेज, मैंने बता ही दिया। ऑटोमेटिकली डिलीवरी, ऑटोमेटिक मतलब आपको किसी के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो ऑटोमेटिकली वो कौन करता है, एनएसडीएल। नेक्स्ट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिविडेंड मतलब आपका एनएसडीएल जो कंपनी है, कंपनी डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को, लेकिन कंपनी को पता होता है कि मेरे इतने नंबर ऑफ शेयर होल्डर है और इतने हर के पास इतने इतने शेयर्स हैं, उसकी डिटेल कौन देता है कंपनी को, एनएसडीएल, कि भाई आपके इतने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं और हर एक शेयर होल्डर के पास इतने इतने शेयर्स हैं, तो आप मुझे लिस्ट दे दो, मैं उनको ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में डिविडेंड क्या कर दूँगी, ट्रांसफ़र कर दूँगी। ओके, नेक्स्ट इज लैंडिंग एंड बोरिंग। लैंडिंग एंड बोरिंग मीन्स कि अगर आपको सपोज अपने शेयर्स गिरवी रखने हैं या फिर उधार लेने हैं तो वो भी आपकी कौन मदद करता है उसमें, एनएसडीएल। नेक्स्ट इज पब्लिक इशू। पब्लिक इशू का मतलब क्या होता है, जब कंपनी कोई नया इशू लाने होती है, कंपनी इशू मतलब शेयर इशू करती है, तो शेयर इशू के टाइम पे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आते हैं जिनको शेयर खरीदने होते हैं, तो वो पूरा पब्लिक इशू कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, आपका डिपॉजिटरी, ठीक है। उसमें अलॉटमेंट में कौन हेल्प करता है कि इतने इतने शेयर्स इस बंदे को देने हैं, उसमें कौन हेल्प करता है, एनएसडीएल। नेक्स्ट इज एसएमएस अलर्ट। एसएमएस अलर्ट मतलब आपके पास टाइम टू टाइम मैसेज आते रहते हैं कि आपके इतने शेयर्स डेबिट हुए हैं, इतने नंबर ऑफ शेयर क्रेडिट हुए हैं, आपके इससे आपके इतने प्राइस पर हुए हैं, इतने नंबर ऑफ शेयर्स आपके या बॉन्ड्स आपके अकाउंट में क्या डीमेट अकाउंट में पड़े हुए हैं,
ठीक है। नेक्स्ट इज कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। मैंने आपको बताया था एक स्टेटमेंट आती रहती है जिसमें आपको पता रहता है कि आपके कितने नंबर ऑफ शेयर हैं, किस प्राइस पर हैं, कब बेचे गए, कब खरीदे गए, वो भी आपका कौन डील करता है, NSDL। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस कवर्ड बाय NSDL। आपको कमीशन वो NSDL, सपोज आपके कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है इन्वेस्टर को, तो जैसे सपोज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की वजह से आपको कोई लॉस हो गया, आपने तो बोला था सेल करने के लिए और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने सपोज परचेज कर दिए, या कोई भी लॉस आपको उसकी वजह से हो जाता है, तो उसका इंश्योरेंस भी आपको डिपॉजिटरी क्या करती है, प्रोवाइड करती है। कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर आपको कंप्यूटर या फिर वो सब कुछ सॉफ्टवेयर जो है उसका डिपॉजिटरी का, वो भी अवेल करने के लिए आपको पूरी हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट इन डिपॉजिटरी ऑपरेशन। सर्टिफिकेशन इन डिपॉजिटरी ऑपरेशन मीन्स कि आपको जितने भी डिपॉजिटरी के अंदर अगर सपोज आपको सर्टिफिकेट्स लेने हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी होते हैं, तो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को उनसे कोई भी ऐसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नहीं बन सकता, उनको कुछ एग्जाम्स होते हैं डिपॉजिटरी के, वो क्लियर करने होते हैं, उसके बाद उनको वो सर्टिफिकेट मिलता है, तभी वो डिपॉजिटरी क्या बन सकते हैं, पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। तो डिपॉजिटरी के जो भी ऑपरेशन है, अगर उनके अंदर आपको कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी कोर्स करना है, तो वो भी आपको NSDL क्या करती है, प्रोवाइड करती है। सो दिस आर द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरी।